students, welcome to first session of chapter 2 inverse trigonometric functions for class 12. So before we start inverse trigonometric functions, there are some points which we need to recall from class 11. ठीक है? So सबसे पहला point जो हमें recall करना चाहिए वो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का क्या होता है. So Cartesian product of A and B is basically again another set whose elements are of the form of an ordered pair. ठीक है, ordered pair के फॉर्म के होते हैं. That is, अगर हमारे पास एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो जो A क्रॉस B होगा उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर यानी कि A, B के फॉर्म के होंगे, वेयर A जो है वो सेट A को बिलोंग करेगा और B जो है वो सेट B को बिलोंग करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं कि मेरे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 हैं और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स A, B है. ठीक है, देन द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी 1, A, 1, B, 2, A and 2, B. One more important point, number of elements in A cross B is equal to the number of elements in set A multiplied by number of elements in set B. That's why in this case we have 4 elements in A cross B because the number of elements in set A is 2, the number of elements in set B is 2, therefore 2 into 2 that is 4. ठीक है? Next important point which we need to know is relations. What is meant by a relation? Then a relation R from A to B is nothing but a subset of A cross B. That means अगर मुझे A से लेके B तक कोई relation लिखना है तो A से लेके B तक a relation can be defined as any of the subset of A cross B. मतलब of all the subsets of A cross B, each subset will represent a certain relation, right? And as we know that number of subsets of a set with n elements is given by 2 raised to the power n. So A cross B में हम देख सकते हैं 4 elements हैं, तो number of subsets जो होंगे वो 2 raised to the power 4 यानी 16. So we can say that there can be 16 possible relations from A to B. And I have mentioned all the relations over here. So first relation is R1, which is 1, A. Then we have R2, which is 1, B. Then we have R3, which is 2, A. Then we have R4, which is 2, B. Then we have R5, which is 1, A, 1, B. Right? Then we have R6, which is 1, A, 2, A. Then we have R7, 1, A, 2, B. Then we have R8, 1, B, 2, A. Then we have R9, 1, B, 2, B. Then we have R10, 2, A, 2, B. Then we have R11, 1, A, 1, B, 2, A. Then we have R12, 1, A, 1, B, 2, B. Then we have R13, 1, B, 2, A, 2, B. Then we have R14, which is 2, A, 2, B, 1, A. Then we have R15, whose elements are 1, A, 1, B, 2, A, 2, B. And then last but not the least R16, which is 5. So there are overall 16 subsets of A cross B. So I can say that there are 16 possible relations from A to B. Now if I talk about what is meant by a function, कि function क्या होता है, तो इन्हीं रिलेशन में से कोई एक रिलेशन फंक्शन, एक या एक से ज्यादा रिलेशन फंक्शन भी कहला सकता है, लेकिन उसको एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. वो कंडीशन क्या है कि a relation from A to B is said to be a function from A to B if for every element A belonging to set A, मतलब सेट A को बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट की
देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट इन डी, मतलब उस सेट ए को बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी से सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। अगर दूसरे वर्ड्स में इसको बताएं तो आप लोगों को पता था ये एलिमेंट होता था और दूसरा वाला उसकी इमेज कहलाता था। सो आई कैन ऑल्सो से दैट फॉर एवरी एलिमेंट लाइंग इन सेट ए देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर मैंने 1 की बात कर ली तो 1 की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 1 की 3-4 इमेजेस बन रही, मतलब 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा जिसमें 1 की एक से ज्यादा इमेज होगी। सेट ए में लाए करने वाले एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है। हाँ, वाइस वर्सा पॉसिबल है कि सेट बी का कोई एलिमेंट जो है वो सेट ए में लाए करने वाले एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज बन जाए, वो पॉसिबल है। बट सेट ए का अगर आप कोई एक एलिमेंट पिक करते हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है, कौन कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं R1 की। तो R1 फंक्शन नहीं है ए से बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 की यूनिक इमेज तो है, लेकिन मैंने क्या बताया, एवरी एलिमेंट इन ए, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 की इमेज मिली ना, 2 की इमेज तो मिली नहीं रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सबसे पहली कंडीशन क्या थी, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब सेट ए को बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट की इमेज मिली, दूसरे एलिमेंट की तो इमेज है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करना है, तो ये नहीं है। फिर इस पे आते हैं, यहाँ पर देखिए 1, A 1, B, कहने का मतलब है 1 की जो इमेज है वो A है और 1 की जो इमेज है वो B है। मैंने तो ये बताया था आपको कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 की 2 इमेज आ गई, मतलब A भी 1 की इमेज है और B भी 1 की इमेज है, तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। फिर इधर आते हैं 1, A 2, A, बिल्कुल इस पे बात करें तो ये फंक्शन है 1, A 2, A इज अ फंक्शन, बिकॉज अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझूं तो यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, यहाँ पर एक एलिमेंट 2 है, यहाँ पर एक एलिमेंट A है, यहाँ पे एक एलिमेंट B है। 1 की सिर्फ एक इमेज है वो है A और 2 की भी सिर्फ एक इमेज है वो है A, तो ये पॉसिबल है, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट इन A देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट इन बी, 1 के लिए सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है बी में वो है A, 2 के लिए भी सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है बी में वो है A, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेट बी में ये पॉसिबल है कि सेट बी का कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज हो जाए सेट ए में, बट सेट ए का कोई एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि 1 की इमेज पता चला ए भी हो जाए, 1 की इमेज बी हो जाए, तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है, 1, A 2, A इज अ फंक्शन, राइट। समझ में आ गई बात सबको? नेक्स्ट चेक करें 1, A 2, B, बिल्कुल ये भी फंक्शन है भाई, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, फंक्शन है। 1, B 2, A बिल्कुल सही है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? बिकॉज 1 की इमेज B मिल रही है, 2 की इमेज A मिल रही है, फंक्शन है। 1, B 2, B ये भी एक फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है? बिकॉज अगर हम देखें तो 1 की भी एक इमेज है और 2 की भी एक ही इमेज है, 2 की कोई 2 इमेज नहीं मिली है, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन इधर बात करते हैं 2, A एंड 2, B, वेन डायग्राम से अगर इसको हम समझें तो सेट ए का एलिमेंट है 2 और इसकी 2 इमेजेस बनी है, ऐसे ही है। तो पहली बात तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। दूसरी बात 1 के बारे में इसने कुछ बात ही नहीं की है। दूसरी बात ये कि 1 के बारे में इसने कुछ बात ही नहीं की। 1 भाई यही तो बोला फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, तो ये फॉर एवरी ए तो नहीं हो गया, नहीं तो सिर्फ एक एलिमेंट की 1 तो छूट गया ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा, राइट, ये फंक्शन नहीं होगा। फिर इसमें बात कर लेते हैं 1, A 1, B 2, A, बिल्कुल ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये फंक्शन? बिकॉज 1 उसकी इमेज A आ गई, तो अब 1 की इमेज जब A आ गई तो 1 की कोई और इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगले स्टेप पे इन्होंने कह दिया 1 की इमेज B भी है, मतलब 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज बन गई
और फंक्शन होने के लिए जरूरी है सिर्फ एक इमेज होना, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर इस पे बात कर ले तो ये भी इसी वजह से फंक्शन नहीं है। फिर इस पे बात कर ले तो ये भी फंक्शन नहीं है। इस पे बात करेंगे ये भी फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही फंक्शन आए हमारे पास, R6, R7, R8 and R9. These are the only functions. These are the only functions from A to B, where A is 1, 2 and B is having elements A, B. तो अगर मैं बात करूं तो देखा आपने क्या देखा कि आउट ऑफ ऑल दी 16 रिलेशन ये सारे के सारे फंक्शन नहीं थे, खाली ये 4 फंक्शन मिले, खाली ये 4 फंक्शन मिले, राइट? क्लियर है बात? So a function, a relation is basically said to be a function if for every element in A there exists only one image in set B, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अगर सेट A के किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन गई तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी समझ में आ गया होगा, रिलेशन समझ में आ गया होगा और फंक्शन समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ फंक्शन। सो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन वी हैव one function. A function f from A to B is said to be a one function if for every element small a belonging to set A there exists a distinct image in set B. इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सेट A का कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लो, सेट A का कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लो, ठीक है, उसकी यूनिक इमेज तो होगी क्योंकि वो एक फंक्शन है, लेकिन ये भी जरूरी है कि उसकी इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब एक बार सेट बी का कोई एलिमेंट किसी की इमेज बन गया तो वो एलिमेंट दोबारा किसी की इमेज नहीं बनेगा सेट ए में, राइट? मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक तो होनी चाहिए, साथ में डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, अलग अलग इमेजेस आनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। और अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन वन फंक्शन कहलाएगा, वरना वो फंक्शन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो यहां पर मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है, 1 2 3 4 है जिसके एलिमेंट्स, और एक सेट बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी और ई हैं। और यहां पर मेरे को 3 फंक्शंस फॉर एग्जांपल दे दिए गए हैं कि F1 F2 F3 ये 3 रिलेशन है, इनको मैं अभी फंक्शंस मान लेता हूं, चेक करूंगा बाद में तो देखेंगे क्या आएगा, और चेक करना है कि क्या ये वन फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन जो है वो F1 दिया हुआ है, तो इसको फटाफट हम लोग डायग्राम के थ्रू चेक कर लेंगे। F1 एक कह रहे हैं फंक्शन है जो A से B तक डिफाइंड है। सबसे पहले आप सेट A के एलिमेंट्स लिख लीजिए और सेट B के एलिमेंट्स लिख लीजिए। तो सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A B C D एंड E। और जो इमेज बन रही है अंडर F1 वो क्या है कि 1 की इमेज A है, ठीक है, 2 की इमेज E है, 3 की इमेज C है और 4 की इमेज A है। तो हमें बताना है क्या ये फंक्शन 1 है। सो ऑब्वियसली बेटा ये फंक्शन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये फंक्शन 1? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट ए में 1 और 4 जिनकी इमेज सेम है, जिनकी इमेज ए है। तो ये फंक्शन तो है बट ये 1 फंक्शन नहीं है। 1 फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए, अलग इमेज आनी चाहिए सेट बी में, राइट? तो ये जो है फंक्शन 1 नहीं है, ठीक है। फिर हम F2 की बात कर लेते हैं। F2 भी हमें डिफाइन किया गया है ए से लेके बी तक, वैसे ही बनाएंगे 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी और ई। तो अंडर F2 इमेज जो है 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ई है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है, राइट? तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं
कि 1 की इमेज ए आ रही है, 2 की इमेज ई है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज बी है. दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी. तो मतलब इस केस में F2 जो है वो 1 1 है. F2 जो है वो 1 1 है. ठीक है. लास्ट F3 की बात करते हैं. F3 एक रिलेशन दिया हुआ है, चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 फंक्शन बन सकता है. वही तरीका रहेगा अपना पुराना. सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए के, 1 2 3 एंड 4. बी के लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई. ठीक है. तो कह रहे हैं 1 की इमेज ए है, वेरी गुड. फिर 2 की इमेज बी है, एक्सीलेंट. 3 की इमेज ई है, दैट्स ऑल, खत्म कर दिया. तो यहां से चेक करना है हमें ये 1 1 फंक्शन है या नहीं. पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है. क्यों नहीं है ये फंक्शन? बिकॉज इसमें एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है 4 जिसकी कोई इमेज नहीं है. और कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता था जब उसके डोमेन में लाई करने वाले, उस रिलेशन के डोमेन में लाई करने वाले हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए. तो इसमें 4 की तो इमेज ही नहीं बन रही है, तो मतलब ये फंक्शन ही नहीं है. और जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 होने का सवाल ही नहीं उठता. क्योंकि 1 1 होने के लिए पहले फंक्शन तो बनो. जब फंक्शन ही नहीं हो तो 1 1 कैसे हो सकते हो, राइट? सो आई गेस आई एम वेरी क्लियर विथ व्हाट इज मेंट बाय 1 1 फंक्शन. एक छोटी सी बात और रिकॉल कराना चाहता हूं कि किसी भी फंक्शन में अगर जो ए से बी तक डिफाइन किया गया हो, तो जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं. जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं. तो जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, अभी मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है? 1 2 3 4. इस फंक्शन के लिए डोमेन जो है वो 1 2 3 4, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने. और रेंज जो है वो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं. रेंज जो है वो बेसिकली जो इमेजेस बनती हैं इन एलिमेंट्स की, जो जो इमेज बनी होंगी वो रेंज में आती है. तो आप देखो रेंज में इनकी जो जो इमेजेस ऑक्यूपाई हुई है, ए ऑक्यूपाई हो गया है, सी बनी है इमेज और ई बनी है इमेज, राइट? तो ए सी एंड ई ये इमेज है, ये इमेज है, तो ये रेंज बन जाएगी. ठीक है. बी और डी क्योंकि इमेज नहीं बनी है इसलिए उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे. इस केस में ए इंक्लूड हो जाएगा रेंज में, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा रेंज में इंक्लूड, बट बी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. और डोमेन और रेंज के बाद एक फैक्टर और होता है कोडोमेन. तो कोडोमेन बेसिकली वो सेट होता है जिससे रेंज निकल के आता है. तो अगर जैसे मैं इसकी बात करूं तो रेंज जो है वो सेट बी से निकला है. तो इस फंक्शन के लिए कोडोमेन जो है ये पूरा सेट बी हो जाएगा. कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई. सो ये चीज बहुत अच्छे से हम याद रखेंगे ताकि हम आगे चल के जब ऑन टू फंक्शन पढ़े तो हमें क्लियर रहे बातें. ठीक है. सो आई गेस आप लोग को 1 1 फंक्शन क्लियर है. डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन क्लियर है. डोमेन मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यूज, जो भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं. रेंज में वो वैल्यूज आती हैं सेट ए के एलिमेंट्स की, जो जो इमेज बनती जाती है वो सेट ए के एलिमेंट्स की जो जो इमेज बनती जाती है वो फंक्शन की रेंज में आ जाती है. जैसे कि अगर मैं बात करूं इस केस में F1 के केस में, तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ई है, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज ए है. तो इमेज में ए सी और ई ऑक्यूपाई हुए हैं, तो रेंज में ए सी ई आ जाएंगे. सेकेंड वाले के केस में रेंज में ए ई सी डी आ जाएंगे. ठीक. तो ये रेंज हो गए. और डोमेन में तो 1 2 3 4 आई है. और कोडोमेन जो होता है वो बेसिकली वो सेट होता है जिससे रेंज निकल के आता है. तो रेंज ए ई सी जो है वो किससे निकल के आया था? सेट बी से निकल के आया था. तो सेट बी जो है वो कोडोमेन हो जाएगा, राइट, ऑफ F1. क्लियर है? सो मूविंग ऑन, हम लोग नेक्स्ट टाइप का फंक्शन डिस्कस करेंगे, ऑन टू फंक्शन.
सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन समझना बहुत ही इजी है। सिंपल से वर्ड्स में मैं डिफाइन करूं अगर ऑन टू फंक्शन को, तो अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if all the elements of b are the image of at least one element in a। मतलब b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की इमेज बन जाए सेट a में, तो ऐसा फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। ठीक है, किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए सेट ए में, राइट। एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of some element in A, then such a function will be said to be an onto function। ठीक है, तो मेरे पास कुछ सेट एज इट इज मैंने लिए हुए हैं A और B, एंड मैंने F1, F2, F3 तीन तरह के फंक्शन लिए। मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो वही पुराना तरीका, मैपिंग करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। F1 A से लेके B तक फटाफट सेट A और सेट B के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। सेट A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, और सेट B के एलिमेंट्स अब की बार मैंने ले लिए हैं A, B और C, राइट। तो देखते हैं 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज A है, 4 की इमेज B है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन सेट A has an image in set B, ठीक है, लेकिन 1 और 3 ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज जो है सेम आ रही है। ठीक, तो ये फंक्शन 1-1 नहीं है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता था कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑन टू फंक्शन चेक करूंगा तो ऑन टू फंक्शन मैं इधर से चेक करूंगा कि क्या A किसी की इमेज है। हाँ बिल्कुल, A जो है वो 1 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या B इमेज है किसी की? B बिल्कुल इमेज है। C किसी की इमेज है? C भी 2 की इमेज है। तो मतलब A, B, C, all these 3 elements are the image of some element in A, so this function is an onto function। F1 जो है वो हमारा एक onto function है। ठीक, नाउ वी टॉक अबाउट F2। तो सेम प्रोसेस रहेगा, पहले सेट A के एलिमेंट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, एंड सेट B ले लिया मैंने, A, B एंड C। सो देख सकते हैं 1 की इमेज कह रहे हैं C है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज A है और 4 की इमेज भी A है। सो अगेन यहां पे क्या हो गया, 1 और 4 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है। तो यहां पे बात खत्म हो गई। F2 जो है वो 1-1 तो नहीं है, F2 इज नॉट 1-1। आइडेंटिफाई करते हुए चल रहे हैं क्या है क्या नहीं। और ABC की बात करें अगर, तो ABC किसी ना किसी की इमेज जरूर बन रहे हैं सेट A में, इस वजह से F2 जो है वो ऑन टू है। F2 इज ऑन टू, राइट। सेम यहां जैसा इसका आंसर था वैसे इसका भी आंसर है, मतलब ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। ठीक, तीसरा फंक्शन देख लेते हैं F3। A से लेके B तक, ठीक। तो 1, 2, 3, 4 A के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और B के एलिमेंट्स A, B, C, ठीक है। 1 की इमेज B है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज A है, 4 की इमेज A है। तो अगेन यहां से भी आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये ऑन टू तो है बट 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है 1-1? क्योंकि
यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट ए में 1 और 4 जिसकी सेम इमेज आ रही है, और आपने 1 के केस में क्या पढ़ा था कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए, बट यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। लेकिन ये ऑन टू है, क्यों ऑन टू है? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of some element in A. Every element of B is the image of some element in A. Therefore, it is an onto function. ठीक, अब मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। 1 फंक्शन का एक नाम और है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। onto फंक्शन इज नोन एज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। अब तीसरे टाइप का भी एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग 1 एंड onto फंक्शन कहते हैं। तो 1 एंड onto फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा फंक्शन विच इज बोथ 1 एज वेल एज onto। अ फंक्शन विच इज बोथ 1 एज वेल एज onto इज नोन एज एन onto फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी होगा, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रही होगी, और onto भी होगा, मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा फंक्शन 1 भी होगा और onto भी होगा। सच अ फंक्शन इज नोन एज 1 एंड onto फंक्शन। ठीक, और जो फंक्शन 1 और onto दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। राइट, सो मैं कुछ एग्जाम्पल जरूर डिस्कस करूंगा 1 और onto फंक्शन के, ताकि आपको बातें और समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई गेस मैं 1 फंक्शन और onto फंक्शन पे अपनी बात एक्सप्लेन कर पाया हूं, और जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के डायग्राम्स के थ्रू, ताकि हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखें। राइट, प्लीज देखिएगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f फ्रॉम a टू b। चेक करते हैं कि क्या ये 1 और onto है या नहीं। सपोज मैंने इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 7 10 15 16 20। ठीक है, 1 की इमेज 10 ले ली, 3 की इमेज 20 ले ली, 4 की इमेज 16, 5 की इमेज 15, 2 की इमेज 7। राइट, सो अब हम देख सकते हैं कि 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 20 है, 4 की इमेज 16 है, 5 की इमेज 15 है। दैट मीन्स सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है, और सेट बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी के इमेज बन रहे हैं, किसी ना किसी के इमेज बन रहे हैं। तो मतलब इस केस में ये जो फंक्शन है वो बोथ 1 एंड onto है, बोथ 1 एंड onto है। चलिए एक फंक्शन में g डिफाइन कर लेता हूं जो कि a से b पर है, और वो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 a b c d e। ठीक, तो इस पे बात कर लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1 है, onto है कि 1 onto है। तो आप देखिए 1 की इमेज a है, 2 की इमेज e है, 3 की इमेज b है, 4 की इमेज c है। तो दैट मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग अलग इमेज है। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन 1 तो है। अब onto के लिए चेक करते हैं। a इमेज बन रहा है, किसी ना किसी की इमेज है, b जो है वो भी किसी की इमेज है, c जो है वो भी किसी की इमेज है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट b प्रेजेंट है हमारे पास जो किसी की इमेज नहीं है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन onto नहीं है, ये फंक्शन onto नहीं है। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, तो आई गेस सभी लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आप कि व्हाट इज अ 1 फंक्शन, व्हाट इज एन onto फंक्शन एंड व्हाट इज अ 1 एंड onto फंक्शन। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन और डिफाइन कर लिया p फ्रॉम a टू b। एलिमेंट्स इसके ले लिए 2 4 6 8, और इधर मैंने ले लिया कि सपोज उसकी पावर 2 है जो भी एलिमेंट
4, 16, 36, 64, तो 2PA ले ले 4, कुछ इस तरह की मैपिंग दे दी मैंने। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है सेट बी में, तो ये फंक्शन 1 1 है। एंड सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए, राइट। सो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक चीज आपने और देखी होगी, अब तक ये समझ रहे होंगे, अगर मैं इसका रेंज निकालूं, इस फंक्शन का रेंज निकालूं, तो इस फंक्शन के रेंज में 7, 10, 15, 16 और 20 आएगा, और कोडोमेन निकालूं तो भी वही आएगा, 7, 10, 15, 16 और 20। मतलब इसमें जो बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है उसमें रेंज और कोडोमेन फंक्शन की सेम आती है। जैसे कि इसमें देख लें, अब ये फंक्शन सिर्फ 1 1 है, तो इसमें रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रही है, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रही है। अगर हम इसकी बात करें तो फिर से देखिए, इसमें रेंज और कोडोमेन सेम आती हैं, रेंज और कोडोमेन सेम आती हैं। क्लियर है? तो मतलब कोई फंक्शन जब जब ऑन टू हो जाएगा, जब जब कोई फंक्शन ऑन टू, जैसे थर्ड केस देख लीजिए, तो इसमें क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो इसमें अगेन रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब भी कोई फंक्शन ऑन टू हो गया तो उस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर एन ऑन टू फंक्शन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, जो रेंज होता है एफ का वही कोडोमेन ऑफ एफ होता है फॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमें बहुत जरूरी था। अब मेरे ख्याल से आप लोग 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड 1 1 ऑन टू फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।